So today's topic is CSS, that is cascading style sheet, which is used when you want to give a proper style to your HTML website. So we have seen that CSS is called as cascading style sheet. So CSS is a short form for cascading style sheet. The syntax of CSS, I have given a short name for syntax is SPV because its syntax goes in a 3 parameter. One is a selector, then property, and then value. So combination of these three makes the CSS syntax. So here actual syntax will be, first it comes selector, then opening curly bracket, then which property you have to give to that selector, colon, the value for that property. Then after every property colon value you have to provide the semicolon, and then you have to end the curly bracket. The example here I have quoted is like if I want to give the color to the paragraph. So P is a selector. Selector means it can be tag or it can be anything. So here P is a selector. The property I have used of CSS is a color, and the value which I have provided to that property is a red. So P is selector, property is color, and value is red. So I call it as a SPV, that is selector, property, and value. Now the mainly we have to concentrate first on the selector part, then we will go with the property and value part. So here I will concentrate on a selector. So selector can be three different types of selector. One, it can be HTML tag. Second, it can be ID. Third, it can be the class. So if it is an HTML tag, अगर आपको CSS की प्रॉपर्टी किसी HTML के टैग के थ्रू प्रोवाइड करनी है, so this is an example like where P is a tag and property I have used is the color and the value for that property is red. And in a HTML, the code will be here like जैसे यहाँ पे provide किया है P hello/P. So P here is a tag of HTML. और जब आपको किसी टैग को रेफर करके आपको CSS की प्रॉपर्टी देनी है तो आपको सिर्फ उस टैग का नाम लिखना है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी नेम, colon, its value, and then semicolon. If you are using a ID to provide the CSS property, so before the name of that ID, you have to provide the symbol that is hash symbol. तो जैसे यहाँ पे A के आगे hash दिया है, inside curly bracket के अंदर कुछ भी change नहीं होता है. We are just changing the value of selector. So instead of P here, I have used the hash P because in a P tag, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि P tag जो है उसके अंदर कुछ नहीं किया था मैंने, P/P and the text, but in a second one P के आगे मैंने लिखा है ID equal to A. So instead of paragraph tag, I am using ID as a to give the property to that paragraph. और ID के लिए हम hash use करते हैं. Next is a class. If you are using a selector as a class, you have to use a dot symbol before the name of that class. So here A will be the name of class and dot, it indicates that this is a class, not a tag, not a ID. And for that the HTML paragraph or any tag will be the tag name and then you have to give class equal to A. तो यहाँ पे A indicate कर रहा है कि ये class है और ये class मैंने दिया है ये P यानी पैराग्राफ को. तो ये पैराग्राफ के आगे जो भी वैल्यू है उसको जो भी मुझे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी है CSS की, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉट एंड A. सो इट विल फाइंड आउट इन योर HTML कोड वेयर द नेम ऑफ क्लास इज इक्वल टू A. उसके आगे जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको ये वाला प्रॉपर्टी क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, either HTML tag or ID or class. If it is tag, you have to just provide the tag name. If it is ID, you have to use a hash and name of ID. If it is a class, you have to use a dot and name of the class. Then next we have seen yesterday is like what are the different types of CSS. So we have seen there are actually three types of CSS. One is inline CSS, second is internal CSS, and third one is external CSS. In the inline CSS, we write the CSS code inside the HTML tag, while HTML code
एज अ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। इसमें CSS का कोड जो है ये हम HTML के टैग के अंदर लिखते हैं, लेकिन टैग के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसको हम एज ए HTML के टैग का एट्रीब्यूट कंसिडर करते हैं। जैसे एट्रीब्यूट यानी क्या, जैसे मैंने बोला इमेज टैग, सो IMG टैग के आगे एट्रीब्यूट क्या होता है, SRC, दिस इज एन एट्रीब्यूट। तो CSS का जो प्रॉपर्टी है वो एज अ एट्रीब्यूट आप HTML के टैग के साथ अटैच करते हो। और इसमें जो कोड है CSS का जो कोड है वो स्टार्ट होता है स्टाइल ये कीवर्ड के साथ। सो हियर स्टाइल कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने कि P टैग है, P टैग को मुझे कलर ये रेड प्रोवाइड करना है बट यूजिंग इनलाइन एग्जांपल, तो P के आगे हमने स्टाइल कीवर्ड लिख दिया एज ए एट्रीब्यूट। P के बाद स्पेस देन स्टाइल इक्वल टू जो भी आपको उसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी है, जैसे हमने दे दिया कलर एंड कोलन करके उसकी वैल्यू प्रोवाइड किया। सो दिस इज हाउ वी राइट डाउन द इनलाइन CSS। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग yesterday, I am just revising that thing. Second is an internal CSS. इंटरनल CSS जो होता है उसका कोड हम लोग लिखते हैं HTML के हेड टैग के इनसाइड में। तो HTML का जहां पे भी आपका कोड रहेगा उसमें हेड टैग, उसके अंदर आपका CSS का कोड आता है, बट हेड टैग के डायरेक्टली इनसाइड नहीं आता है। हेड टैग के बाद यू हैव टू यूज अ टैग विच इज अ स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग जब आता है इंटरनल CSS में तो पता चलता है इसके बाद वाला कोड CSS का है जब तक स्लैश स्टाइल नहीं आता है, मतलब उसका एंडिंग नहीं आता है। तो हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल, जैसे HTML के कोड में पहले हमको लिखना पड़ेगा हेड, हेड के अंदर सेकेंड टैग आएगा स्टाइल टैग, एंड इनसाइड हम बता रहे हैं कि पूरे HTML के कोड में जहां पे भी P या पैराग्राफ का जहां पे भी टैग दिखेगा वहां पे आपको उसकी कलर जो है उसको क्या करना है, रेड प्रोवाइड करना है, एंड देन एंड ऑफ स्टाइल टैग एंड एंड ऑफ द हेड टैग। सो लाइकवाइज यू राइट डाउन द कोड फॉर इंटरनल। इनलाइन के लिए हमने टैग के अंदर ही स्टाइल कीवर्ड इक्वल टू और प्रॉपर्टी दे दिया। यहाँ पे हमने हेड टैग के अंदर स्टाइल को एज अ टैग लिखा है और उसके अंदर हमने ये वाला पूरा प्रॉपर्टी विथ द नेम ऑफ टैग वी हैव प्रोवाइडेड। थर्ड वन इज एन एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हमने कल देखा था यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द टू फाइल .html फाइल एंड .css फाइल, एंड यू हैव टू राइट डाउन द CSS कोड इनसाइड .css फाइल। यानी इसमें दो फाइल बन गई आपकी, HTML की एक फाइल, एक CSS की फाइल। CSS का पूरा कोड .css फाइल में जाएगा, HTML का पूरा कोड HTML के अंदर जाएगा, लेकिन इन दोनों को लिंक करने के लिए CSS फाइल का जो नाम है वो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं HTML में। तो ये नाम प्रोवाइड किया जाता है HTML के अंदर यूजिंग लिंक टैग। तो .html के अंदर आपको एक टैग यूज करना है हेड टैग के इनसाइड, लिंक टैग, जिसमें आप ये वाले CSS फाइल का नाम प्रोवाइड करोगे। सो हियर इज एन वन सिंपल एग्जांपल, लाइक वी हैव टू सी द टू फाइल्स। वन इज हमने दो फाइल बना ली है a1.html की और a2.css की। a1.html में हमने कोड लिखा है HTML हेड, हेड टैग के अंदर यहाँ पे हमको लिंक टैग यूज करना है। लिंक टैग के साथ 3 एट्रीब्यूट्स जाते हैं। फर्स्ट इज REL, दैट इज रिलेशन। तो हमने बता दिया कि ये a.html इसका लिंकिंग होने वाला है एक ऐसी फाइल के साथ जो फाइल का यूज है स्टाइल प्रोवाइड करने के। सो इट इज अ वन काइंड ऑफ स्टाइल शीट। कौन से टाइप का स्टाइल शीट है, इट इज अ CSS काइंड ऑफ स्टाइल शीट। तो सेकेंड एट्रीब्यूट है टाइप जिसकी वैल्यू है CSS, एंड थर्ड इज अ href, दैट इज उसका ये फाइल का नाम हमको उसका रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस हमको प्रोवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे CSS फाइल का नाम a2.css है तो वो फाइल का नाम दे दिया। सो इनसाइड द हेड टैग यू हैव टू यूज अ लिंक टैग विथ 3 पैरामीटर, relation that is fixed style sheet, type with the fixed value text/css, and third href with the value which you are providing which is depend on your name of CSS file. head tag को end किया, link tag को end करने की जरूरत नहीं, it is a singular tag, and body tag में मैंने एक simple tag use किया है p tag, that is paragraph tag, और मुझे चाहिए कि पैराग्राफ टैग को मुझे कुछ तो स्टाइल प्रोवाइड करना है यूजिंग एक्सटर्नल CSS। और वो वाला कोड जो है सिंपल दिस वन कोड आई हैव पुटेड इन a2.css, और रन होगी आपकी कौन सी फाइल रन करोगे आप, a1.html की फाइल एक्चुअली यहाँ पे रन की जाती है।
So now when to use which type of CSS, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कोट किया था कि कौन से टाइप का CSS हम कब यूज करेंगे, मींस इंटरनल कब यूज करेंगे, इनलाइन कब यूज करेंगे एंड एक्सटर्नल कब यूज करेंगे. So I am expecting that answer from you students. So here, like I have added the same thing which is tell by Ashwini. You will use a inline CSS when you want to use the CSS property for only one or two tag of HTML. मतलब हार्डली किसी एक आधे पैराग्राफ को आपको कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना है या किसी टेबल को कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली उस टैग के अंदर आप क्या करोगे, CSS की प्रॉपर्टी लिख दोगे. लेकिन you will use internal when you want to use the CSS property for more than one tag. अगर आपके पूरे वेब पेज में पैराग्राफ टैग सपोज 7 से 8 बार आ रहा है और आपको जितनी बार भी आएगा हर एक के लिए आपको उसका कलर सेम होना चाहिए या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है मार्जिन वाली वो सेम चाहिए, तो हर बार अलग अलग लिखने के बजाय आप क्या करोगे, वो पूरा कोड इंटरनल में डाल दोगे. So when you want to apply any property for more than one tag or you have only one HTML file, then and then you will go with the internal. But when you have a very large website, large means which is having multiple HTML file, बहुत सारे hyperlinks है, बहुत सारे HTML pages है और बहुत बड़ी वेबसाइट है और आपको लग रहा है जितने भी वेब पेजेस है हर एक का स्टाइल सेम होना चाहिए, हर एक का फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए, हर एक का मार्जिन सेम होना चाहिए, हर एक का फॉन्ट की साइज, हर एक का फॉन्ट कलर, हेडर की प्रॉपर्टी, सब चीजें एकदम यूनिक लगनी चाहिए कोई भी पेज पे जाओ HTML के. सो दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन दैट कोड इनसाइड द एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फाइल का लिंक आपको हर HTML पेज में खाली प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो जिस भी HTML पेज को आप उस CSS फाइल का लिंक दे दोगे वो सब HTML फाइल के लिए वो सब रूल्स जो है CSS के या स्टाइल जो है वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा. So this is the beauty of external when you are working for more than one HTML. Yes. मैम हम वन HTML फाइल में मोर देन वन CSS फाइल्स लिंक कर सकते. Yes, you can, but why you want to? क्योंकि आपको जो भी प्रोवाइड करना है CSS का आप एक ही फाइल के अंदर पूरा लिख सकते हो. अच्छा, आपका ऐसा है कि आप छोटे छोटे प्रॉपर्टीज अलग अलग CSS में बना के रखोगे लाइक पैराग्राफ वाली और ये, तो रीयूज करने के लिए आर आस्किंग फॉर रीयूज पर्पस. यस मैम. Yes, you can. Yes, you can. Okay. Just one minute, student. Okay, so I hope you understood like the types of CSS, the syntax of CSS, and when to use a which kind of CSS. Now we'll see actually the different properties that you can use with a CSS. बहुत सारे हैं. It's a very huge. Okay, I am just covering some of the things. आपको बहुत छोटा पार्ट है सिलेबस में, but I am trying to cover the more part. ताकि आप जब प्रैक्टिकल करो या खुद की वेबसाइट डिजाइन करो तो एटलीस्ट जो बेसिक चीजें आपको होनी चाहिए. तो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम ये टॉपिक जो है कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर ऑल दिस थिंग. सो हियर आई एम गोइंग टू कवर द लाइक द डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज गिवन फॉर foreground color, for background color, for CSS border, CSS text, CSS font, CSS margin properties, padding properties, टेबल के लिए प्रॉपर्टीज के अलावा लीस्ट प्रॉपर्टीज है, शैडो प्रॉपर्टीज है, n नंबर ऑफ प्रॉपर्टी. ये पूरा एक कोर्स है. अगर आप CSS इन डिटेल करना चाहो इट रिक्वायर रियली 1 or 2 months. आपको अगर पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो ओके, बट एटलीस्ट दिस बेसिक एटलीस्ट यू शुड नो, तो आप काफी अच्छे से स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो. विल गो जस्ट वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ कलर प्रॉपर्टी. जो कलर प्रॉपर्टी ऑलरेडी कल हम लोगों ने काफी बार जो मैंने एग्जांपल्स कोट किए थे उसमें मैंने यूज भी किया था, जिसमें सिंपल हम लिखते हैं उसको कलर कोलन कलर की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. सो एग्जाम्पल कलर कोलन आप कलर का इधर नेम प्रोवाइड कर सकते हो लाइक RGB वाले कलर जो होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू लाइकवाइज, और यू कैन ऑल्सो पुट द हेक्साडेसिमल वैल्यू. क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लू जो शेड है, ब्लू के बहुत सारे शेड होते हैं, इट्स हैविंग ऑलमोस्ट 256 शेड.
तो हर एक का नाम हमें नहीं पता है, बट हर एक के लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है. So you can find out a hexadecimal value for the color that you want to give, and just after a color put that hexadecimal value with a ampersand and hash. So that is the one thing. So it is used to give the 4 color. 4 color मतलब अगर आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को 4 कलर देने के लिए इसका कलर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है. या फिर अगर आपका कोई बॉर्डर है, कोई टेबल का बॉर्डर या पैराग्राफ का बॉर्डर, तो उस बॉर्डर को भी आप कलर करने के लिए इसको यूज कर सकते हो. सेकेंड इज योर बैकग्राउंड कलर. सो बैकग्राउंड कलर इज यूज टू गिव द बैक कलर. तो बैक कलर जैसे अगर आपने कोई टेबल लिया है तो टेबल को बैक कलर कर सकते हो, पैराग्राफ को कर सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि H1 एक टैग है, तो H1 टैग जहाँ पे भी दिखेगा HTML के पूरे पेज में, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जाके आप क्या करो, कलर प्रोवाइड कर दो ग्रीन वाला. अगेन हियर यू कैन गिव आइदर अ टेक्सचुअल वैल्यू फॉर कलर और यू कैन प्रोवाइड अ हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर कलर. बोथ इज ओके. सेकेंड, इंस्टेड ऑफ कलर यू कैन ऑल्सो पुट अ इमेज. काफी सारे वेब पेज होते हैं कि जिसमें वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड में एक इमेज प्रोवाइड कर देते हैं. या फिर आपको लग रहा है कि आपके टेबल आपने जो यूज किया है, टेबल के बैकग्राउंड में इंस्टेड ऑफ कलर आई वांट टू पुट सम इमेज. और फॉर योर पैराग्राफ जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के पीछे कोई एक इमेज आ जाना चाहिए. जो जनरली काफी बार ये वाटर मार्किंग के लिए इसको यूज किया जाता है, बैकग्राउंड इमेज को. बैकग्राउंड इमेज को आप रिपीट कर सकते हो. अगर छोटी इमेज है तो वो इमेज पूरे वेब पेज में मल्टीपल टाइम्स आना चाहिए जब तक पूरा वेब पेज कवर नहीं होता है. तो यू कैन ऑल्सो यूज अ बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी फॉर दैट. सो हियर यू कैन राइट डाउन, जैसे बैकग्राउंड इमेज मुझे पूरे वेब पेज के बैक साइड में चाहिए, तो इसलिए मैंने बॉडी जो टैग है उसमें प्रोवाइड कर दिया, जिसमें बैकग्राउंड डैश इमेज एंड कोलन करने के बाद हमेशा देखो जो वैल्यू है, वैल्यू के आगे हमने कोलन यूज किया, बिकॉज आई एम गिविंग इट्स ऑल अ इंटरनल और एक्सटर्नल. ये सब मैंने इंटरनल या एक्सटर्नल के हिसाब से प्रोवाइड किया, इनलाइन के लिए नहीं. एंड यू हैव टू गिव URL एंड द नेम ऑफ योर इमेज विथ इट्स एक्सटेंशन इन अ डबल कोट. सो दिस इज एन बैकग्राउंड. देन नेक्स्ट इज अ बॉर्डर. बॉर्डर में बहुत सारे है. बॉर्डर को जाने के पहले हम चाहिए तो ये जो बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने जो देखा या बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं. कल वाला ये एग्जाम्पल है, सपोज ये वाला टेबल है एंड इसको हम पहले रन कर लेते हैं. ओके, दिस इज अ सिंपल वन टेबल. टेबल को हम बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं. ओके, and I want that table should have some background color. तो यहाँ पे इंटरनल CSS में भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप इनलाइन भी यूज कर सकते हो. सपोज मैं इंटरनल CSS में इसका कोड लिखती हूँ एंड इनसाइड अभी मुझे बैकग्राउंड कलर देना है टेबल को. सो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया लाइक टेबल. सो दिस इज माई सिलेक्टर, opening and closing bracket. Inside what property I have to use, either I can use color अगर मुझे टेक्स्ट को कलर देना है, और बैकग्राउंड जब मुझे बैक में कलर देना है. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बैकग्राउंड कलर कोलन, और यहाँ पे सपोज हम लोगों ने प्रोवाइड किया सम एनी कलर, ब्लू कलर. ओके, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया. सो यहाँ पे क्या हो गया, बैकग्राउंड में उसको कलर प्रोवाइड हो गया. So you can check out this background color. और यही चीज अभी यहाँ पे मुझे एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी देनी है टेबल टैग के लिए, तो आप क्या करो, जैसे आप एक से ज्यादा कोड लिखते हो तो कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. तो यहाँ पे 4 कलर मुझे देना है, तो 4 कलर सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे रेड कलर. सो यहाँ पे 4 कलर आ गया. सो दिस इज अ 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी. नाउ इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड कलर आई वांट टू पुट अ बैकग्राउंड इमेज. So here I will use background image, and here you have to use URL, and inside the URL you have to provide the name of your image. अब ये वाला जो कोड है css-1.html, this is stored inside my WTL folder. तो अब WTL फोल्डर में अगर कोई इमेज है, ओके, सपोज SNJB नाम की एक इमेज है जिसका एक्सटेंशन JPG है,
सो आई विल प्रोवाइड हियर snjb.jpeg. अगर jpeg वर्क नहीं करेगा, सो यू हैव टू जस्ट चेंज इट विद द jpeg. ओके, तो jpg करके देखते हैं हम लोग. या तो ये snjb का जो इमेज है वो इमेज क्या हो गया, यहाँ पे आ गया. अगर हमारा टेबल और थोड़ा बड़ा रहेगा तो पूरा इमेज यू कैन लाइक कवर देयर. So likewise, it is going to give that image to your table. Okay. Now instead of table, अभी मैंने table के बजाय यहाँ पे डाल दिया body tag. Now body tag मतलब क्या कि ये body tag जहां से start होके जब तक end हो रहा है तब तक हर एक चीज के लिए जो भी मैंने प्रॉपर्टी दी है वो क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी. सो आप देखो जितने भी टेक्स्ट आ रहे थे उसके अंदर सब जगह पे क्या हो गया, टेक्स्ट रेड में आ गया और पूरा इमेज जो है वो इतनी बार रिपीट हो गया कि पूरा जो बॉडी का पार्ट है वो क्या किया, उसने कवर कर दिया. सो लाइकवाइज यू कैन डू दैट थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज. और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है. मैंने हर एक के अंडर के 2-2 या 3-3 प्रॉपर्टीज लिए उसको कैसे यूज करना है ये बताने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज अ बॉर्डर प्रॉपर्टी. सो फॉर अ बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज अ बॉर्डर स्टाइल, जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो. डॉटेड लाइन चाहिए बॉर्डर की, डैश चाहिए, सॉलिड चाहिए, डबल चाहिए. इसके अलावा होवर एक होता है, बहुत सारे वैल्यूज है. सो इट्स एक्सेट्रा मींस इट इज हैविंग द मोर वैल्यूज दैट आई हैव गिवन. The example here I have given is you can use this border style to any of the tag, like p tag ले लो आप, table tag ले लो, h1 tag ले लो. So any tag के लिए अगर आपको border provide करना है, so you have to give a border dash style और कौन से टाइप का स्टाइल आपको इस वैल्यू में से चाहिए, so that you can give. Next is a border width, कितना विड्थ चाहिए आपको उस बॉर्डर का, थिकनेस कितना चाहिए. तो ये थिकनेस आपको देना है पिक्सल में. px means it is a in a pixel or in a points. So again here you can give border dash width and उसका thickness हम लोगों ने points में provide कर दिया. Then third one is you can also provide the color to your border. So again color will be border dash color and the value. Next is a border radius. Radius मतलब border by default आता है square में. अगर आपको square के बजाय rounded चाहिए थोड़ा सा like थोड़ा राउंडेड, थोड़ा ज्यादा राउंडेड, तो कितना राउंडेड चाहिए तो उसका आप रेडियस प्रोवाइड करते हो अगेन इन अ पिक्सल. सो इट इज अ बॉर्डर डैश रेडियस एंड यू आर गिविंग दैट वैल्यू इन अ पिक्सल. ओके, सो विल जस्ट प्रोवाइड दैट थिंग. यहाँ पे अभी मैं इमेज निकाल देती हूँ. ओके, और बॉडी के वजह हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज किया हम लोगों ने और इसको हमने डाल दिया लाइक बॉर्डर डैश एंड पहले हम लेंगे उसका स्टाइल. सो बॉर्डर स्टाइल एंड हियर सपोज वी हैव प्रोवाइडेड लाइक डॉटेड और डबल और डैश व्हाटएवर यू वांट. देन नेक्स्ट इज बॉर्डर डैश कलर and here suppose we have given blue color. Then border dash width and here we have provided width in a pixel, that is suppose 4-5 जितना भी thick pics चाहिए आपको, that you just provide. And last one is suppose border dash radius and radius हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे suppose 15 पिक्सल. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका थोड़ा साइज कम करते हैं यानी आपको थोड़ा समझ में आएगा और डॉटेड के बजाय हम सॉलिड लेते हैं.
ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड मतलब सॉलिड में आ गया वो बॉर्डर, राउंडेड मतलब मैंने जो रेडियस दिया था 12 या 15 पिक्सल, इसके लिए वो राउंडेड में आ गया, और हम लोगों ने क्या किया था, उसका कलर प्रोवाइड किया, प्लस थिकनेस 5 था, तो टोटल 5 पिक्सल कवर होंगे, इतना क्या आ गया, उसका थिकनेस आ गया। अगर यहाँ पे जाके हम इसको, सपोज मैंने 5 ही किया, रेडियस 5 ही कर दिया, सो थोड़ा ही राउंडेड, इट्स जस्ट अ वेरी लिटिल बिट ऑफ राउंडेड। अगर मुझे हर पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल या कलर प्रोवाइड करना है, सो यू हैव टू प्रोवाइड हियर अ आईडी फॉर एवरी, मतलब हर एक को आप क्या कर सकते हो, इधर आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया आईडी इक्वल टू सपोज A1 एंड सपोज आईडी इक्वल टू A2 एंड हियर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे डाल दिया सपोज मैंने A3। तीनों के लिए मुझे कॉमन प्रॉपर्टीज बाकी सब सेम रखना है, लेकिन कलर हर एक का अलग आना चाहिए, तो कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने P करके डाल दिया, ओके, कि जहाँ पे भी पैराग्राफ दिखेगा ये आना चाहिए। लेकिन अगर #A1 जहाँ पे भी आईडी आएगा वहां पे उसका बॉर्डर का कलर ब्लू चाहिए, अगर #A2 आएगा तो उसके बॉर्डर का कलर सपोज मुझे चाहिए कि वो रेड आना चाहिए, एंड हैश अगर वो A3 है देन उसके बॉर्डर का कलर जो है सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया कि ग्रीन आना चाहिए। तो सिर्फ जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो हमने चेंज कर दी। तो यहाँ पे देखो तीनों का थिकनेस सेम है, तीनों राउंडेड में है, एंड तीनों का जो स्टाइल है वो सॉलिड है, खाली तीनों का कलर मुझे चेंज चाहिए था। तो सिर्फ जो चेंज वाली वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे हैश करके डाल दी। कॉमन वैल्यू के लिए मैंने टैग का नाम ही क्या किया, एज इट इज रखा। अगर आपको लगता है कि टेबल के लिए भी यही चीजें अप्लाई होनी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा कर दो एंड यहाँ पे टेबल डाल दो। सो व्हाट विल हैपन कि 2 टैग के लिए मैंने ये तीनों चीजें जो है ये प्रोवाइड की है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये राउंडेड में आ गया, यहाँ पे इसका थिकनेस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन इसको मैंने कलर जो है, कलर यहाँ पे वैल्यू दी है क्या, नहीं, कलर की वैल्यू यहाँ पे, इसके लिए सिर्फ कलर ये प्रॉपर्टी आपके टेबल को अप्लाई नहीं हुई, बाकी थिकनेस, राउंडेड एंड सॉलिड ये सबके लिए अप्लाई हो गया। सपोज मैंने सॉलिड के बजाय यहाँ पे जाके अगर मैंने डाल दिया डैश, तो ये देखो सबके लिए एक साथ वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ CSS नाउ, ओके। सो दिस इज अबाउट द बॉर्डर्स। देन नेक्स्ट इज योर टेक्स्ट, ओके। जब तक ये टेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ तब तक अभी आप लोग चैट बॉक्स में, बहुत सारे लोगों का अटेंडेंस नहीं है, मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट नहीं लेने वाली हूँ। सो यू हैव टू प्रोवाइड द अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स। अगर किसी का अटेंडेंस बाकी है तो चैट बॉक्स में आप लोग अटेंडेंस डाल दो, ओके, 2 मिनट्स के अंदर। सो नेक्स्ट इज अ CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए अगेन यू कैन यूज अ फोरग्राउंड कलर, यू कैन यूज अ बैकग्राउंड कलर जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया। इसके अलावा यू कैन यूज अ अलाइनमेंट प्रॉपर्टी जिसमें आप वैल्यू दे सकते हो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। नेक्स्ट यू कैन यूज अ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप देते हो कि आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन चाहिए, या टेक्स्ट के मिडल में अंडरलाइन जो है मतलब कट किया हुआ वैसा डेकोरेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। You want text automatically to be transform into upper case, lower case, capitalize। देखो काफी बार ऐसा होता है कि आपको एक फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म में ऐसा लिखा रहता है कि नाम जो है वो कैपिटलाइज ही होना चाहिए, तो आपने स्मॉल में भी लिखा ना तो भी वो ऑटोमेटिक कैपिटल में चला जाता है। या फिर आपको लग रहा है कि जैसे ईमेल है, ईमेल हमेशा हमको स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में ही होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट यू कैन प्रोवाइड सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। सो ये वाले अलग अलग प्रॉपर्टीज है, हम देखते हैं अभी ये सब प्रॉपर्टीज चाहिए तो यहाँ पे करके, ओके। अभी मैं ये बॉर्डर वाला चीज हटा देती हूँ फिलहाल, एंड इसके बजाय हम लेते हैं अभी सिंपल। जैसे अगर मैंने डाल दिया कलर, तो जितने भी पैराग्राफ है हर एक के टेक्स्ट का कलर सपोज मुझे चाहिए है ग्रे में, ग्रे में आ जाएगा। आफ्टर दैट सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू, सपोज मुझे सब सेंटर में चाहिए है तो यहाँ पे सेंटर वैल्यू दे दिया।
थर्ड इज टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट स्लैश डेकोरेशन एंड यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दिया अंडरलाइन एंड लास्ट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड हियर आई हैव प्रोवाइडेड अपरकेस। ओके, अभी जैसे हम इसको रन करेंगे सो ये तीनों पैराग्राफ के लिए ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो गया, सेंटर में आ गया, तीनों को अंडरलाइन आ गया और तीनों का कलर क्या हो गया, ग्रे कलर हो गया। सो यू कैन सी द कलर दैट इज फोरग्राउंड कलर। अगर यहाँ पे मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने डाल दिया लाइक सपोज रेड, सो टेक्स्ट के बैक में कलर चला गया और फोरग्राउंड के लिए कलर प्रॉपर्टी आ गया। सो लाइकवाइज यू कैन प्रोवाइड द डिफरेंट थिंग। अब मुझे लग रहा है कि हर एक का जो डेकोरेशन और ट्रांसफॉर्म है ये हर एक के लिए अलग होना चाहिए। अगेन सेम यू कैन यूज लाइक #A1 और इसके लिए मैंने प्रोवाइड कर दी प्रॉपर्टी ये वाली, फर्स्ट के लिए ये वाला प्रॉपर्टी आना चाहिए एंड फॉर सपोज सेकेंड पैराग्राफ जो है क्योंकि उसका आईडी हमने A2 लिया है तो उसके लिए हमने डाल दिया कि अंडरलाइन के बजाय यहाँ पे आ गया, सपोज मैंने दे दिया ओवरलाइन एंड अपर केस के बजाय यहाँ पे हमने डाल दिया कैपिटलाइज, ये वैल्यू प्रोवाइड कर दिया एंड सेम फॉर योर A3, here we will use line through एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया लोअर केस। ओके, और रेड के बजाय यहाँ पे हम देते हैं कलर येलो। ओके, तो तीनों का बैकग्राउंड कलर देखो अंडरलाइन था तो नीचे आ गया और उसको कैपिटलाइज हो गया। सेकंड मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया था इसके लिए कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज आ जाएगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज और उसके ऊपर ओवरलाइन, दिस इज अंडरलाइन, दिस इज ओवरलाइन, दिस इज लाइन थ्रू, मतलब वो कट हो जाएगा और पूरा मैंने क्या किया है यहाँ पे लोअर केस में डाल दिया है। सो लाइक दिस, सो यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ टू डेकोरेट द टेक्स्ट, कैसे आप उसको टेक्स्ट को डेकोरेशन प्रोवाइड कर सकते हो। So after the text, next is a font property of CSS जिसमें आता है font family, font style, font size which is in a pixel, font style में आता है normal, italic और एक दो values है उसके, font width, sorry font weight मतलब आपको normal चाहिए, bold, bolder, boldest, कितना ज्यादा उसको emphasize करना है तो वो होता है weight के अंदर। सो अगेन विल सी दिस फॉन्ट फैमिली, यानी आपको फॉन्ट का जो नाम है जो आप जनरली वर्ड में यूज करते हो फॉन्ट फैमिली के लिए तो वो आप यूज कर सकते हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, वर्दीना, सो ये सब हो गए फॉन्ट फैमिलीज। तो यहाँ पे अगेन सपोज हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका फॉन्ट एंड यहाँ पे फैमिली, फॉन्ट फैमिली के अंदर हमने डाल दिया वैल्यू टाइम्स न्यू रोमन। ओके, एंड यहाँ पे डाल दिया फॉन्ट डैश साइज, साइज यहाँ पे मैंने डाल दिया 35 पिक्सल एंड फॉन्ट डैश स्टाइल, यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज बोल्ड। ओके, आफ्टर दैट क्या बचा है हमारा, सॉरी फॉन्ट स्टाइल में हमने डाल दिया इटैलिक एंड हियर फॉन्ट डैश वेट
कोलन हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया बोल्ड। ओके, ये सब हमने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के लिए किया है। सो फर्स्ट पैराग्राफ का यू सी इटैलिक में आ गया, पिक्सल साइज इंक्रीज हो गया, फॉन्ट का टाइप चेंज हो गया एंड थोड़ा बोल्ड हो गया बाकी सबसे। सो ये सब प्रॉपर्टीज, इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज है फॉन्ट के जिससे तुम जो टेक्स्ट है उसको बहुत